So guys, let's learn about query optimization technique. Okay. So what is query optimization techniques and how we can use in SQL, right? So this is the main question every interviewer asks because they have done with your technical interview question in SQL, like write this query and update this table, insert this table, or any of the query, Windows expression table or anything, right? But at the end, they will always ask how you will optimize this query. And this question can be asked with data analyst, data scientist, SQL developer, DB administrator, any of them, because you are the only who is writing the query, right? And that query, you should know how you can optimize it, right? And if we think about that, ki how we learn in last lessons, like where we learn the optimization, okay, so we saw indexing. हमने इंडेक्सिंग को पढ़ा था, राइट? तो इंडेक्सिंग में हमने क्वेरी ऑप्टिमाइज करी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका एक बार देख लेना, जिसमें हमने परफॉर्मेंस को बिल्कुल 10 सेकंड से 1 सेकंड में हम लेके आए थे, मिली सेकंड्स पे, राइट? इफ यू रिमेंबर दैट। एंड नेक्स्ट हमने उसके बाद देखा विंडो विंडो फंक्शंस एंड हमने उसके बाद देखा कॉमन एक्सप्रेशन टेबल। सो विंडोज फंक्शन की हेल्प से हम रैंकिंग एंड जितना भी हम ओवर पार्टीशन बाय करते थे, तो वहाँ पे हम ना यूटिलाइज करते थे अपनी सारे सीपीयू को एंड हम अपने परफॉर्मेंस को इतना ट्यून कर देते थे कि हमें ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा स्पेस की, राइट? विद द हेल्प ऑफ विंडोज फंक्शन। एंड नेक्स्ट वी सॉ common expression table. So with the common expression table, we remove subquery timing, right? Because if you writing any subquery in main query, so it will, or suppose this is the constant variable, constant value which you are taking in subquery. Suppose the average value you are taking. So every time you run the main query, subquery will always run. So you should not do it, right? So that's why we started use common expression table. So in this complete lecture, we will see 15 of ways how you can optimize your query. So in this complete lesson, you will know A to Z, like how much ways you can optimize your query and what is the ways of optimize the query. And if you want to tell your interviewer, suppose that he will not say, okay, Kanhaiya or someone name, okay, just optimize database, I will give you the database access. No, he will only ask you what is the query optimizing techniques you know, right? So let's start with lesson. And guys, if you have not followed the course, so I will recommend कि आप website पे जाओ because I have starting generating certificate. Okay, so if you guys completed the certificate, because this is the last lesson of this video. After this, we will complete our SQL projects and also we will learn about some techniques or something related to SQL, which is like suppose that conclusion video we will create after this video. Okay, so I will recommend start your course and get your certificate. Okay, and also try to upload assignment ASAP because without assignment you will not get certificate. Right? Okay, guys. And one more information, like I have created one roadmap here for SQL roadmap, right? SQL developers. So here, what I will do, suppose this is asset properties. I have told you asset properties in translation video. So this particular text, I will make a link that ever you click on this link, you will redirect it to that video. So this will be easy if you want to remind, if you want to revise that topic, or if you want to learn that topic. Okay. So it's enough of discussion. Let's start with query optimization. So let's see what we will learn in this lesson first. First of all, query optimization technique. Second, why and when optimization. Suppose that if the query is already optimized and you are doing the optimization, so that's not necessary, right? So real examples, analyze queries, like before optimizes, you need to analyze that, right? Database structure, indexing not works sometimes. Why? Okay, so this also we need to check. Suppose that you are applying indexing, but still it's not working. So that's you need to know why indexing are not working and where you need to put the index so that you can say, okay, now this index is working and I know what the result will be appear. Interview questions. Okay, this is our special one because we will discuss interview question is each and every video. So I will recommend, if you have not watched that last 32 videos, please watch that. Okay. Okay, guys. So guys, let's start with SQL query optimization. Okay. So before query optimization, you need to know how much time your query is taking. मतलब एक क्वेरी अगर आपका 10 सेकंड ले रही है या 5 सेकंड ले रही है, देन आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे 1 सेकंड में या
.5 में या मिली सेकेंड्स में, राइट? बट यू नीड टू नो कि वो टाइम कितना ले रही है सबसे पहले, ठीक है? तो इन इंडेक्स वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू how you can use the explain to get the time of the query. Okay, again I am mentioning that. So what you need to, suppose that this is one query, select all from users. Okay, first we will use our sample database, then we will add users. Okay, and let's put one condition where name, or you can say, yeah, name only we can add, where name like, okay, suppose k से start do name कुछ. Okay, so here you can see I found two records with the name start with k. Okay, so let's see how much time it's taking. So what you need to do, add the explain keyword. Okay, so in the explain keyword, let's change it to record. Okay, so here you can see I have some columns. Okay, last time also I mentioned, I'm mentioning again. Okay, so this is id. Okay, id because we need a step number in execution order. कितने step हमें execution order में लगे. सिलेक्ट टाइप क्या है इसका, सिंपल भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, सब क्वेरी भी हो सकता है. प्राइमरी जब होता है जब हम प्राइमरी कीज़ के थ्रू उस क्वेरी को रन करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी की यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जॉइंस वगैरह में. टेबल हमें डिफाइन करते हैं यूजर्स, किस टेबल में हम करें. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू एलाइज दिस नेम, तो इट विल शो आई. ओके, वट एवर यू गिव. देन हमारे पास क्या है, टाइप है रेंज, मतलब हम एक रेंज में सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज के से स्टार्ट करके के एंड तक हम रेंज यूज़ कर रहे हैं, राइट? So here you can see the type of show the MySQL searches. Okay, this is a type of search. You can say type means type of search. Okay, type of search. So join type shows how MySQL search types. Okay, system one is const. Const mean when you are selecting data with ID. Suppose if I run this query and I put here ID equal 5 something. So if I run this query, so you can say type is const. Okay, because this is just filtering one row. Okay, and you can say this is showing filtered 100 rows, because I will tell you why, because we are using index here. Okay, I will tell you why. So this just I'm mentioning type of search. Equal reference, reference when you are using common table expression or any subquery or something or joins, so that means it's reference table. Then range we see, and there is an index and all. Okay, so index means whenever you apply index on your query, then it will show index search. Okay, so here type primary, possible keys are primary. Okay, let's see type after this possible keys. So index that might be used, जो इंडेक्स हमारी क्वेरी में यूज हुई है, सपोज आईडी इज इंडेक्स, प्राइमरी की इज ऑल्सो इंडेक्स, आई टोल्ड यू, ठीक है, तो पॉसिबल कीज में हमारी प्राइमरी यूज होगी. थर्ड वन इज की, द एक्चुअल की इंडेक्स. ओके, सो द की इज प्राइमरी बिकॉज हम यहाँ पे प्राइमरी यूज कर रहे हैं. सपोज दैट because where if you I have added indexing on users table, if you remember. So okay, what we can do, so this is show index from table. Okay, so now how many index we have, I will return to text, sorry, not this, record and grade. ओके, सो वन इज़ प्राइमरी, वन इज़ यूजर्स नेम. तो मतलब हमारे पास यूज़र पे भी इंडेक्स है. तो सपोज दैट मैं अगर कुछ यहाँ पे नेम सर्च करता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, 505 रिकॉर्डर में सर्च किया, राइट, दिस वन. इसका एक्सप्लेन हटा के इसका नेम सर्च कर लेते हैं. नेम, इफ आई टुक दैट नेम and if I put here, because we are using equal operator in index video, I will show you, right, showed you how you can add the index and how equal works and how like works. Okay, so suppose that if I put this explain here, right, तो record पे click करते हैं, तो now you can see possible keys are ix username. Okay, भाई देखो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, because you need to know how your query actually performing and what data and what keys that your query is using, right? So keys mean the actual index. So key means this is ix username. I have added the key, right? Rows, estimated rows MySQL will examine. See, how many rows MySQL will examine? One. Why one here? And filter is 100. Okay, because एक ही रो उसने एग्जामिन की है एंड फिल्टर रो कितनी की है उसने, 100. तो एक बार इसको रोज को मैं समझाता हूँ. नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा और समझ लो. देखो, एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल एग्जीक्यूशन डिटेल्स की एक्स्ट्रा में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, जैसे फुल स्कैन है, राइट, या फिर यूजिंग वेयर है, यूजिंग इंडेक्स है. तो अभी देखो नल है, अगर मैं इसको 505 करता हूँ और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो व्हाट इट विल शो,
एक्सटर्नल बिकॉज हम यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं। बट अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा में अब क्या आ रहा है, यूजिंग फेयर फिल्टर 10 रोज एंड रोज कितनी फिल्टर हुई, हम रोज हमारी कितनी फैच हुई है 99,522 रिमेंबर। ओके, एंड टाइप क्या है इसका, ऑल, बिकॉज हम कोई भी इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तो इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा में हमारा क्या आता है कि हम क्या एग्जीक्यूशन यूज कर रहे हैं। देयर इज अ वन मोर थिंग, फाइल शॉर्ट। ओके, सो फाइल शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेरी। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं रोज की, भाई रोज कैसे फिल्टर होती हैं। ठीक है, तो सपोज दैट इफ आई एम फिल्टरिंग दिस, सो यू कैन सी 99522, बट इफ आई गोइंग टू यूज इंडेक्स, ओके, तो इंडेक्स में कितनी रोज फिल्टर हुई, 1, बिकॉज हमारे पास एक इंडेक्स का पूरा एक, आई विल जस्ट शो यू जस्ट अ सेकंड, हमारे पास इंडेक्स का एक बी ट्री होता है, राइट, एंड विद बी ट्री वी fetch index wise data, right? So it's constant id, right? So that mean if we fetch any id from primary key, okay, so it will search in a tree manner. Okay, so it will search for 505 and 500 rows. So that's why you can see filtered row is 100 because it searches in 500 section, and because 500 के बाद तो 600 लग जाएगा, तो ऑफकोर्स 5 की वैल्यू तो नहीं आएगी, तो इसने इसको किस रेंज से सर्च किया होगा, 500 से टू 59, बिकॉज इसके बाहर रिकॉर्ड नहीं ऐड होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आई नो, बट हाँ, इंडेक्स वाला अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो दिस इज एक्सप्लेन गाइस, हाउ एक्सप्लेन वर्क्स एंड हाउ यू कैन चेक द क्वेरी परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज? Okay, there is a two keywords. So in explain you can't see any data here, right? Like how much time it will take your query and all that, because मैंने स्टार्ट ही से किया था कि आपकी क्वेरी कितना टाइम ले रही है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट डेटा है। इफ यू वांट टू सी फुल डेटा इन एक्सप्लेन, व्हाट यू नीड टू डू, you need to add format json. Okay, so if I going to use format json here, okay, so now you can see it's showing the data in format. तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड वेयर वी नीड टू गो, वी नीड टू गो इन विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पे हम अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी द डेटा बेटर देन रो टेबल एंड कॉलम। ओके, सो हेयर यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, रो एस्टिमेटेड पर स्कैन 1, फिल्टर रो 100। ठीक है, कीज वगैरह भी सब यहाँ पे दिखा रहा है, की लेंथ दिखा रहा है, रेफरेंस की लेंथ हमारी 4 है। ओके, क्वेरी कॉस्ट इसमें आ गया, क्वेरी कॉस्ट 1, राइट, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेरी कॉस्ट पूछता है तो यू नीड टू यूज एक्सप्लेन एंड देन शो इट टू हिम और हर, कि लाई देखो हमारी क्वेरी इतना कॉस्ट ले रही है सीपीयू का। ओके, ये सीपीयू का कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं है कि नहीं 2 रुपये लगे हमारी क्वेरी रन करने में, ऐसे तो लग जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉस्ट इन्फो क्या है, यू कैन सी रीड कॉस्ट, इवेल्युएशन कॉस्ट, प्रीफिक्स कॉस्ट, प्रीफिक्स कॉस्ट, डेटा रीड पर ज्वाइंट। ओके, एंड यहाँ पे यूज्ड कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कॉलम इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, so suppose that this is id. Okay, I'm selecting this data on id. If I select this data on behalf of mobile number, so what it will happen, mobile equal something something. ओके, नहीं मिलेगा डेटा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे डेटा फिल्टर करने से मतलब है। ठीक है, तो इफ आई पेस्ट दिस, तो नाउ यू कैन से हाउ मेनी रोज आर फिल्टर, रो एग्जामिन 99,522, रो प्रोड्यूस पर जॉइन। ओके, read cost, so now you can see read cost is too much, prefix cost is too much, right? एंड हम अटैच कंडीशन क्या है हमारी, मोबाइल नंबर जिसमें हम ये डेटा चेक कर रहे हैं। क्वेरी कॉस्ट पहले कितनी थी, 1, एंड नाउ अब कितनी है, 10120.45, so that's why we need to use index. ठीक है, अब एक्सप्लेन एनालाइज की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन में और एक्सप्लेन एनालाइज में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो explain analyze is just different from explain because explain आपकी query को run नहीं करता है, it just show how your query will perform. Are you getting me? How your query will perform. It's not execute the real query, but explain analyze will execute your real query. How you can difference that? देखो suppose that मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्या करना है, जैसे सेलेक्ट क्वेरी, ऑफ कोर्स सेलेक्ट क्वेरी ही सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है, यही ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई इंसर्ट क्वेरी देखनी है कि भाई इंसर्ट क्वेरी इतना टाइम क्यों ले रही है डेटा इंसर्ट करने में, क्योंकि आपके पास क्लाउड है, बड़ा सर्वर है, देन इट कैन बी टेक द टाइम। अगर आपके पास क्लाउड है, बड़ा सर्वर है, तो इट कैन टेक टाइम, तो टाइम ले सकती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आप इसको तो बार बार रन करके ऑप्टिमाइज करोगे नहीं,
ठीक है, क्योंकि एक प्राइमरी की जनरेट होती है, वो आईडी पॉपुलेट करती है, तो डिस्प्यूट होता है कि भाई 3 रोज़ आपकी बीच में से कहाँ गई। सपोज़ दैट आपने इंसर्ट क्वेरी का एग्जामिन किया, लेकिन वो 3 रो डिलीट कर दी। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे 1, 2, 3 में हम ऑर्डर ले रहे हैं, हमने 4, 5, 6 गलत रिकॉर्ड थी, हमने डिलीट कर दिया, तो नेक्स्ट विल स्टार्ट 7, 8, 9 इस वजह से। तो हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेन एनालाइज का। तो इन एक्सप्लेन एनालाइज इट विल ऑल्सो शो हाउ योर सपोज दैट दिस इज क्वेरी कॉस्ट, इतना कॉस्ट लग सकता है आपको, बट इन एक्सप्लेन एनालाइज इट डायरेक्टली शोज हाउ मच कॉस्ट इट टेक। उसमें बताएगा कितना ले सकता है, इसमें बता रहा है कि एक्चुअल टाइम इतना लगा भाई, ये आपका कॉस्ट था, ये आपका एक्चुअल टाइम है क्वेरी परफॉर्म करने में कितना लगा, कितनी रोज फिल्टर करी, कितने लूप रन करे और डेटा क्या था। ठीक है, अब देखो इसमें तो डेटा कम आ रहा है आपको क्योंकि ये की पे भेज रहे हैं हमारा, लेकिन अगर मैं इसको किसी ऐसी क्वेरी पे लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है, तो देखो ये टेबुलर फॉर्म में आ रहा है। अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ विद द इंडेक्स, बिकॉज हम इंडेक्स लुकअप कर रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम फिल्टर कर रहे हैं रोज को। ठीक है, ये मैं पूरा एक बार पीडीएफ में दे दूंगा, उसको डेफिनेशन वाइज पढ़ लेना, लेकिन खुद से प्रैक्टिकल करके देखो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये इंडेक्स लुकअप है, यहाँ पे हमने डेटा फिल्टर करा। ठीक है, तो फिल्टर में मोबाइल नंबर से हमने फिल्टर करा है, तो कॉस्ट कितना आया, इसका कॉस्ट देखो 0.35 है, इनका इसका कॉस्ट देखो 10,120। इतनी रोज फिल्टर हुई है, इसमें रोज एक सिंगल फिल्टर हुई है। तो यू कैन पुट इंडेक्स अभी आएगा ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे, बिकॉज मुझे ऑप्टिमाइजेशन में इंडेक्स तो एनी हाउ मैं मेंशन करना ही है। ठीक है, सो इसको एक बार और समझ लेते हैं। टेबल स्कैन में आपका यहाँ पे इंडेक्स को लुकअप हुआ है, इसमें फिल्टर एंड देन टेबल स्कैन। तो पहले टेबल स्कैन होता है, देन उसके बाद फिल्टर होता है। ठीक है, तो टेबल स्कैन में जितना डेटा आएगा उसके बाद यहाँ पे वो रोज फिल्टर होगी। ठीक है, एक्चुअल टाइम इट टेक और हाउ मेनी रोज इट्स सर्च फॉर, बिकॉज ऑफकोर्स हमने मोबाइल नंबर रैंडम सर्च करा है और उसको लास्ट तक नहीं मिला, तो वर्स्ट केस में कितना डेटा है हमारे पास यूजर्स टेबल में, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम यूजर्स, तो हमारे पास 1,01,102 रोज है, राइट। तो इतना ही इसने डेटा सर्च किया है, बिकॉज मोबाइल नंबर को ढूंढने में पूरा हमने डेटा सर्च कर लिया, राइट। सो दिस हाउ एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एनालाइज वर्क। ओके, सो लेट्स, यार वीडियो लंबी हो रही है आई नो, ठीक है, बट लेट्स गो टू अदर मेथड्स। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखनी है आपको, सो हेयर यू कैन सी व्हाट इज एक्सप्लेन इन एसक्यूएल एंड व्हाट इज एक्सप्लेन एनालाइज, कंपेयर्ड प्लान विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट, फाइंड्स स्लो स्टेप्स इन रियल एग्जीक्यूशन, turn indexes, joins or filtering logic. Okay, as you can say filtering and all that. Okay, so in next video, अभी देखो परफॉर्मेंस की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो हाउ यू कैन चेक द एग्जीक्यूशन प्लान। मैं एक बार जस्ट शो कर देता हूँ एग्जीक्यूशन प्लान होता क्या है। ठीक है, तो सपोज मैंने क्वेरी रन करी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, सॉरी नॉट हियर, ओके मैंने क्वेरी रन करी। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका ना मुझे क्वेरी प्लान एग्जीक्यूशन प्लान देखना है कि कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक है भाई बटन, एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सिंपल भी आता है, यहाँ पे टेबल कितनी सर्च हुई, रेफरेंसेस का क्या है, और ग्राफ भी आता है कि कैसे एग्जीक्यूशन इसका हो रहा है। तो हेयर यू कैन सी द एक्चुअल टाइम, सिलेक्ट कितना टाइम ले रहा है, सिलेक्ट कीवर्ड आपको कितना टाइम ले रहा है, टेबल में आपको जो रेफरेंस है वो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कोई जैसे मल्टी स्टेप क्वेरी, सपोज ये क्वेरी है, ठीक है, अब मैं इस क्वेरी को क्या करता हूँ भाई, एग्जीक्यूशन प्लान में डालता हूँ। तो नाउ यू कैन से हाउ मच टाइम, हाउ मच लूप्स, हाउ मच टेबल इट इज यूजिंग, राइट, बट वी विल सी दिस एग्जीक्यूशन प्लान इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद दिस। भाई एसक्यूएल सीरीज बहुत जल्दी खत्म नहीं होगी, वैसे इसकी लास्ट वीडियो, दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो, इसके बाद एसक्यूएल एग्जीक्यूशन प्लान एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट्स। ओके, तो असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करो, एंड गाइज प्लीज इनरोल इन द in website for the project. Okay, and guys please enroll in course, because now you can after this lesson you can generate the certificate. One more thing, this is free for first 100 students. Okay, I can see there is a many of students enrolled, but now I am saying again 100 more student can enroll free, because certificate is chargeable and it will be cost to me also, because this is ISO certified. Okay, so I will be like, if you put that certificate on your LinkedIn, on your resume, so it will add the value like you learned SQL completely. Because if anyone see this course syllabus, you can see there is a 33 50 around 40 lectures. Okay, so 40 lectures, that mean you learned a advanced SQL, right? So that is why I'm saying, so please join that course as soon as possible. Okay, so after this,
after execution plan, you know how you can check the optimization and how you can check the query performance. Okay, so now we will start with our 15 options how you can optimize the query. Okay, so let's go one by one. First is optimize data retrieval. Okay, so that means select only needed columns. That I told you many times, don't use select star. Select star does not mean anything. What you need to know, how much column you are fetching, because suppose that you have 5 columns in your query and you need all the data. I am saying आपके पास एक query है, आपके पास एक table है, उस query में 5 कॉलम है. सपोज दैट यूजर्स टेबल है, यूजर्स टेबल में आपके पास 5 कॉलम है, ठीक है. लेकिन आपको केवल आईडी से कोई मतलब नहीं है, यूजर को आईडी दिखानी नहीं है. चलो आपने आईडी ले भी ली अपने किसी एक्शन के लिए, एडिट के लिए, डिलीट के लिए. नेम, मोबाइल, स्टेटस से आपको क्या मतलब है? स्टेटस आप उसका कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी मतलब कोई अगर स्टेटस नहीं दिखाना आपको, स्टेटस नहीं दिखाते बहुत जगह पे, क्रिएटेड ऐड कॉलम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, डीओबी. और ये तो मैंने 5 कॉलम बनाए हैं. यूजर्स टेबल में 50 कॉलम्स तक हो सकते हैं, ठीक है. तो आप स्टार लगा के सारा डेटा तो फैच करोगे नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है. तो इसके ऑप्टिमाइजेशन के लिए व्हाट वी विल डू, वी कैन just use the columns name. Okay, this is not this. Yes, this is bad syntax and this is the right syntax. Because suppose that in future अगर आपके पास आपके अभी 5 कॉलम है, इन फ्यूचर कस्टमर टेबल के अंदर देखो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, इस टेबल में कितने सारे कॉलम है, ठीक है. कंट्री क्या दिखाने की जरूरत है आपको, एड्रेस लाइन 2 क्या दिखाने की जरूरत है. एक टाइम पर अगर आप यूजर की प्रोफाइल शो कर रहे हो तो आपको केवल कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फोन नंबर और उसका सिटी या सिंगल एड्रेस दिखाने की जरूरत होती है, राइट. सो इसलिए कभी सिलेक्ट स्टार मत करना, ठीक है. और इसका एक एक्सप्लेन भी देख सकते हो. इफ आई डू एक्सप्लेन फॉर दिस, सो इट विल शो डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट डेटा रोज एंड ऑल दैट. बट अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो इट विल शो डिफरेंट टाइम विद एक्सप्लेन एनालाइज, ठीक है. सो दिस इज बैड, दिस इज गुड. नेक्स्ट व्हाट इज फिल्टर अर्ली विद वेयर. देखो, पेजिनेशन आपने सुना है, ऑफ कोर्स सुना होगा. देखो मैं एक बार इस यूजर्स टेबल को सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इन एंटरप्राइज वर्जन एंटरप्राइज वर्जन इन डीबी वेयर I can see only 200 row fetch at a time. Whenever I am scrolling, it is fetching more data. You can see this is refreshing, right? Refreshing means it's not fetching all the data on a single time. 1 lakh records, it will not fetching. Okay, it is not fetching that. So अगर आप, of course ये बात है, 1 लाख रिकॉर्ड आप सिंगल पेज पे नहीं दिखा सकते, तो what you can do, you can apply pagination. Pagination means limit and offset. ये मैंने बहुत अच्छे से बताया लिमिट और ऑफसेट कैसे यूज कर सकते हैं. कि भाई मैंने यहाँ पे क्या करा कि मुझे लिमिट मैंने यूज़ किया 0 एंड कब तक मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मतलब 10 लिमिट चाहिए और 0 एफ साइड है इसका. तो मेरे पास 0 से 10 तक रिकॉर्ड आ जाएंगे पहले पेज के लिए. फिर मैं यहाँ पर 10 दे दूंगा तो मेरे पास 10 से 20 आ जाएंगे. फिर मैं यहाँ पे 20 दे दूंगा. इस तरीके से आप एक बार में डेटा फैच कर सकते हो. इट विल ऑल्सो ऑप्टिमाइज योर क्वेरी, ठीक है. यूज लिमिट एंड टॉप एंड ऑल्सो यू कैन फिल्टर अर्ली विद वेयर कंडीशन. जैसे मेरे को चलो लिमिट से नहीं चाहिए, मुझे वेयर कंडीशन चाहिए कि वेयर भाई रिकॉर्ड टिल कि भाई इस रिकॉर्ड तक आ जाए, मतलब काउंट, राइट. काउंट भी यू कैन मेंशन. ओके, वेयर कंडीशन का हम नेक्स्ट जॉइंट देखेंगे, वहाँ बेटर यूज है, राइट. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है. सो आफ्टर दिस वी हैव इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज. ओके, सो इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज मीन्स इंडेक्सिंग इज जस्ट नॉट द वे टू ऑप्टिमाइज द क्वेरी. मतलब केवल वही वे नहीं है ऑप्टिमाइज करने के लिए. इंडेक्सिंग को भी आपको स्ट्रेटेजिकली आपको चेक करना पड़ता है कि सही क्वेरी आपकी परफॉर्म हो रही है और सही इंडेक्स परफॉर्म हो रही है. अब सपोज दैट क्या नेम के ऊपर, इफ आई रन दिस क्वेरी, क्या नेम के ऊपर क्वेरी इंडेक्स लगाना सही है? गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक. बट अकॉर्डिंग टू मी नेम के अंदर ऑफ कोर्स ये कंडीशन लगाना चाहिए. नेम कैन बी डुप्लीकेट, मल्टीपल नेम कैन बी इन अ 1000 रिकॉर्ड. देखो सबसे कॉमन नेम मैं बताऊं, शिवम, ठीक है. उसके बाद शुभम, मतलब इफ आई सर्च इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट ना, तो मुझे कम से कम 10 शिवम मिलेंगे और 15 शुभम मिलेंगे. दैट हैपन गाइस, एक्चुअली दैट हैपेंस. ठीक है, तो नेम के अंदर कोई लगाने का कोई सेंस नहीं है. यू कैन पुट मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर इज अ यूनिक की. यू कैन पुट ऑन आईडी कॉलम, राइट. यू कैन पुट ऑन ईमेल कॉलम. इन कॉलम्स पे, और फर्स्ट थिंग, एक तो इंडेक्स आप लगा रहे हो इन कॉलम पे. सेकंड आपका जो नीड है, जैसे अगर मैं पॉइंटर्स की बात करूं यहाँ पे, लेट्स गो, आई हैव ऐड द पॉइंटर्स. ओके, सो there is some important things cluster index में भी explain करूँगा. key optimization tips, okay, that you need to know. use index for columns in where, join and order by. जो column join में, where में यूज हो रहे हैं, केवल उन्हीं कॉलम पे इंडेक्स लगाओ. और ऑर्डर बाय के कॉलम में जिसमें ऑर्डर बाय कर रहे हो, देखो ऑर्डर बाय ईमेल तो नहीं करोगे, ऑर्डर बाय आईडी करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है. एंड स्टेटस पे वैसे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें तो सिंगल वैल्यू होती है.
ठीक है। तो ऑर्डर बाय जिस कॉलम से कर रहे हो उसी कॉलम पे आप इंडेक्स लगाओगे, वेयर एंड जॉइन जिसमें यूज हो रहे हैं ज़्यादातर। सपोज दैट अगर मैं कभी नाम सर्च ही नहीं करूंगा, नाम से फिल्टर ही नहीं करूंगा, तो मेरा की लगाने का क्या फायदा उसमें, राइट। अवॉइड इंडेक्सिंग स्मॉल टेबल्स, द ओवरहेड इज नॉट वर्थ इट। ऑफकोर्स अगर आपके टेबल में 5 रिकॉर्ड, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 50 रिकॉर्ड्स हैं, 500 रिकॉर्ड्स हैं, मैं तो कह रहा हूँ 100 रिकॉर्ड्स हैं, ओ सॉरी 1000 या 5000 भी रिकॉर्ड हैं, तो उसमें इंडेक्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। क्योंकि इंडेक्स आप एक टेबल अलग से क्रिएट करती है एंड वो टेबल भी मेमोरी में स्पेस लेती है, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। Don't over index, slow down write performance. Of course, I told you in the index part. Check query performance with explain or select. ये तो मैं बता ही चुका आपको, ठीक है। And guys, we have type of index also. ठीक है, तो index देखो मैं दोबारा explain नहीं कर रहा हूँ. Indexing is in a SQL act as a shortcut that helps the database find and retrieve data much faster, right? So cluster index और non cluster index मैं explain कर देता हूँ. देखो बहुत basic है. Cluster index physically order the table data. Physically order means टेबल के अंदर आप वो कोई भी ऑर्डर बाय नहीं लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, तक मैं दिखाऊं, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक जगह पे इसको सॉर्ट कर देगा। जैसे मैंने इसमें फिजिकल इंडेक्स में प्राइमरी की यूज करी है आईडी के ऊपर, अगर मैं आईडी को प्राइमरी की ना बना के नेम बनाता तो ये इसको अल्फाबेटिक वे में सॉर्ट कर देता। सेम मोबाइल नंबर को भी सॉर्ट कर देता, मतलब इसमें वो 10 फर्स्ट डिजिट वो आते जो मिनिमम डिजिट है एंड लास्ट डिजिट वो आता जो मैक्सिमम डिजिट है, राइट। बट दैट्स वाई वी ऐड आईडी ऑलवेज फॉर अ फिजिकल सॉर्टिंग, ठीक है। और क्लस्टर्ड इंडेक्स एक ही होती है टेबल में, ठीक है। प्राइमरी की यूजली क्रिएट अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, अ सेपरेट स्ट्रक्चर पॉइंटिंग टू द टेबल रोज, मतलब ये अलग से एक टेबल क्रिएट होती है, एज आई टोल्ड यू इंडेक्स पार्ट, ठीक है, कि एक अलग से टेबल क्रिएट होती है जिसमें हम नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स का डेटा रखते हैं। जैसे हमारा नेम्स ना एक अलग इंडेक्स टेबल के अंदर होगा बी ट्री में, जहाँ पे हमारा नेम स्टोर होगा। जैसे ए से रिकॉर्ड होंगे, वो ए से रिकॉर्ड सारे फर्स्ट रो में होंगे। नेक्स्ट बी, जैसा अगर मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ, हाँ, जैसे इसमें ए डेटा के रिकॉर्ड होंगे, बी डेटा के रिकॉर्ड होंगे, सी के होंगे। अब ए के बाद जितने रिकॉर्ड होंगे, ए सी बी, ए बी डी, ए एन बी, वो सारे रिकॉर्ड इसमें होंगे। फिर ए जेड, ए एक्स जेड, ए वाई जेड, वो इसमें होंगे। सेम ऐसी बी का, सेम ऐसी सी का, राइट। सो दिस इज हाउ इंडेक्स वर्क्स, ठीक है। So let's go to our next thing, join optimization. So guys, why join optimization? देखो join optimization इसलिए ज़रूरी है because first आप unnecessary join लगा देते हो बहुत बार। unnecessary join कैसे, आपको एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, लेकिन आपने क्या करा कि उस वैल्यू को आपने क्वेरी के अंदर लिख दिया विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन, एंड एंड अगेन वो टेबल को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सो एक तो अवॉइड अननेसेसरी ज्वाइन, डोंट ब्रिंग एक्स्ट्रा टेबल्स यू डोंट यूज। अगर आप कोई टेबल को ज्वाइन नहीं यूज नहीं कर रहे हो, केवल एक आपको सिंगल डेटा चाहिए उसका, तो आप उसके लिए कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करो, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने सिटीज बताए हैं, उस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से वो डेटा लेके आओ एंड देन उस टेबल को ज्वाइन करो जो अपने डिराइव टेबल है, क्योंकि उसमें कोई कॉलम नहीं है ज़्यादा, फर्स्ट एंड सेकंड केवल आपका यूजफुल डेटा है, देन वो इजीली ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। बैड जॉइंस टू अ टेबल जस्ट टू गेट अ वैल्यू डोंट रियली नीड, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम जस्ट टेकिंग द वी आर टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ओके, एंड कस्टमर आईडी पे हमने ज्वाइन लगाया कस्टमर टेबल से ऑर्डर्स की टेबल के साथ, एंड रीजंस का हमने ज्वाइन लगाया रीजन आईडी के साथ, ठीक है। तो और यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टार्ट भी कर रखा है, तो इसको ऑप्टिमाइज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे गुड एग्जांपल देखा जाए इसका, तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर नेम। सबसे पहले हमने स्पेसिफिक डेटा लिया एंड रीजन हम यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं कर रहे हैं। रीजन आप देख रहे हो कहीं मैंने कॉलम लिया है, नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं उस रीजन टेबल को निकाल दूंगा और यहाँ पे केवल नीडफुल कॉलम ही रखूंगा, ठीक है। मतलब देखो आई नो यू अंडरस्टैंड दिस कि ज्वाइन में अननेसेसरी क्यों लगाऊंगा, बट समटाइम इट हैपन कि क्वेरी टाइम ले रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो ज्वाइन कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन विच इज फिल्टर अर्ली, add where or on condition to reduce rows before the join explodes the result set. Okay, what does it mean? देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हुए हैं। I'm selecting the data, okay, where orders, customers, and customer is only fetching from USA कि USA कस्टमर फैच करने हैं behalf of कस्टमर आईडी में ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बैड वे क्यों है ये, बिकॉज फिल्टरिंग आफ्टर द ज्वाइन, वी आर फिल्टरिंग डेटा आफ्टर द ज्वाइन, क्योंकि पहले ज्वाइन काम करेगा, ज्वाइन से सारा डेटा आ जाएगा हमारे पास, जैसे 100 डोज आएंगे सपोज, एंड देन उसके बाद हम फिल्टर करेंगे कि भाई ये यूएसए कंट्री का होना चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन डू,
फिल्टर इनसाइड द जॉइन कंडीशन। मतलब आप जॉइन कंडीशन जब लगाओगे तो ऑन के बाद एज आई टोल्ड यू इन जॉइन पार्ट कि आप, और जॉइन की वीडियो अगर गाइस आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, और सबकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ वो सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ इस सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑन के बाद आप जितनी भी कंडीशन ऐड करना चाहो विद यूजिंग एंड ऑपरेटर, ये वेयर नहीं है, ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप एंड कंडीशन लगाते हो तो क्या होता है कि जॉइन के साथ साथ ही वो फिल्टर होता है कि जब भी हम जॉइन कर रहे हैं हम उसी डेटा को लेके आएंगे जो इस कंडीशन के अंदर है, राइट। तो इट विल नॉट इम्पैक्ट मच, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सप्लेन एनालाइज करके चेक कर सकते हो, आई विल गिव यू दिस क्वेरी इन डिस्क्रिप्शन, ओके। बट यहाँ पे हम डेटा फिल्टर कर रहे हैं कब, जब हमारे पास डेटा आ गया, और यहाँ पे हम डेटा फिल्टर कर रहे हैं डेटा आने से पहले, okay. So this is the good filtering option. Next is use index join keys, ensure the column used in joins are indexed. देखो जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, सो व्हेन आई रन दिस यू कैन सी पॉसिबल कीज इसमें क्या यूज हो रही है, प्राइमरी, एंड द सेकंड की इज कस्टमर नंबर, ओके। मतलब क्या है आपका यहाँ पे, मतलब क्या है हमारा कि हम जो भी यहाँ पे फिल्टरिंग कर रहे हैं या फिर ऑन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो एक प्राइमरी की पे है। तो इट्स जस्ट सजेस्टेड कि इंश्योर द कॉलम यूज इन जॉइन आर इंडेक्स। मतलब आप नेम के बिहाफ पे अगर कॉलम लगा दोगे, जैसे मैंने कस्टमर नेम पे लगा दिया कि भाई कस्टमर नेम दोनों का मैच होना चाहिए, या वेयर कंडीशन में लगा दिया, तो इट विल बी इम्पैक्ट आवर परफॉर्मेंस। तो व्हाट यू कैन डू, you can simply use the index. What you can do, you can simply use the columns where column are indexed. जैसे मैं ID कॉलम इंडेक्स होता है, या आपने मोबाइल नंबर या ईमेल कॉलम इंडेक्स कर दिया है अकॉर्डिंग टू योर यूज केस, ठीक है। दिस रिड्यूस द रोज जॉइंड इन द फर्स्ट पेज दैट आई टोल्ड यू। Next, what did we have? Select only needed columns. Okay, to avoid star, as this is also required. Reason being, this is most required in joins. तो दी join में जब आप दो टेबल यूज करते हो तो वो दोनों टेबल के सारे कॉलम लेके आता है। सपोज दैट ये हमारा क्वेरी काम कर रहा है, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे स्टार लगा दिया, तो अब मैं इसको रन करूंगा एक्सप्लेन हटा के, तो आप देख सकते हो मेरे पास सारे कॉलम्स आ गए फॉर बोथ टेबल्स, राइट। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कॉलम्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज be mindful with join order, database optimize automatically but filtering on smaller set first can help. मतलब what you can do कि यहाँ पे आप join multiple जैसे कर रहे हो, लेकिन आप where condition and limit का यूज करो, जिससे आप एक फर्स्ट पेज पे जितना डेटा दिखाना चाहते हो केवल वही डेटा है, अन्यथा डेटा ना आए, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ यू कैन यूज द क्वेरी विद joins order and also you can put limit here. मतलब आप लिमिट और ऑफसेट जो मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको, तो लिमिट एंड ऑफसेट आप जैसे यूज करोगे तो अगर ये क्वेरी आपका टाइम सारा डेटा फैच करने में टाइम ले रही है, so with the help of limit you can only fetch the data for first page and for next page you can also fire the query again, right. So it will also reduce your cost to fire on 1000 or 1 lakh rows, ठीक है। So why this is optimized, because देखते हैं एक बार, ओनली नेसेसरी कॉलम सिलेक्टेड, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड, फिल्टरिंग ऑन कंट्री इनसाइड द जॉइन, ठीक है, क्योंकि हम जॉइन के बाद ही एंड कंडीशन के साथ कंट्री फिल्टर कर रहे हैं, राइट। फिल्टरिंग ऑर्डर बाय स्टेटस बिफोर पेजिनेशन, हम यहाँ पे ऑर्डर बाय कॉलम जो है आपका, फिल्टरिंग ऑर्डर बाय स्टेटस बिफोर दिस, बिफोर पेजिनेशन, लिमिट से पहले हम इसको फिल्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट, लिमिट्स यूज फॉर पेजिनेशन, ठीक है, हम यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं पेजिनेशन के लिए। जॉइंस आर ऑन केवल joins are on index keys only, primary key and foreign key, which is customer ID, order ID and product ID. So I want you to guys write one query with fetching 5 tables, but each table should be on index. तो एक स्ट्रक्चर में आप, आई एम जस्ट सेइंग नॉट क्रिएट अ टेबल इटसेल्फ, ओके, टेबल मैंने ऑलरेडी डेटाबेस में, बट एक माइंड से एक डिराइव टेबल क्रिएट करो, सिंपल एक अपने माइंड में क्रिएट कर लो कि भाई मेरे पास एक क्या है, अपने एडिटर में यूज़ कर लो या विजुअल स्टूडियो कोड या कमेंट सेक्शन में भी, एक मेरे पास यूजर्स टेबल है, ठीक है। यूजर्स टेबल के बाद एक ऑर्डर्स टेबल है, एक ऑर्डर्स के बाद मेरे पास कार्ट की टेबल है, कार्ट के बाद मेरे पास चेकआउट टेबल है, चेकआउट के बाद मेरे पास विश लिस्ट है। तो मुझे क्या करना है, सारी टेबल्स को ज्वाइन करना है विद देयर प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। सो इन सारी टेबल्स को ज्वाइन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कैसे इन सारी टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज। दिस इज काइंड ऑफ टास्क फॉर यू, ओके। So next, move to next slide. Okay, let's see the next option, which is distinct. Okay, so distinct will slow your database. Why? It forces the database to sort and compare rows to remove duplicate. Suppose that अगर मैं कोई भी distinct apply करता हूँ किसी भी कॉलम के ऊपर, ठीक है, तो मैंने क्या करा, suppose select distinct from where, cust id, अब मैं किस टेबल में से cust id distinct कर रहा हूँ, from
ऑर्डर्स, ठीक है। तो क्या करेगा, देखो ये सर, और देखो ये तो एडवांस दिखा रहा है, नाम भी दिखा रहा है, नेम मैंने फैच नहीं किया है, बट ये एंटरप्राइज वर्जन है, दैट इज वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट ऑर्डर दिखा रहा है कि 98 डिस्टिंक्ट रोज हैं, और वैसे कितनी रोज है हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर, बिकॉज कस्टमर आईडी तो एनी हाउ होगी हुई हो, तो कस्टमर आईडी तो एनी हाउ होगी, और वैसे रोज हमारे पास कितनी है 326। तो अगर हम डिस्टिंक्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है, डेटा को सॉर्ट भी कर रहा है, राइट, एंड डेटा को फिल्टर भी कर रहा है, ठीक है, कि भाई केवल यूनिक रोज आए। तो यू आर रिट्रीविंग मैनी कॉलम्स, द डेटा सेट इज लार्ज, देयर इज अ नो सपोर्टिंग इंडेक्स, क्योंकि डिस्टिंक्ट इंडेक्स भी काम नहीं करती है, राइट। सो इंडेक्सिंग से ऑफकोर्स आपका डेटा लोड बढ़ता है, तो व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन फिक्स दिस थिंग, रूट कॉज क्या है, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट के लिए सबसे पहले तो यूनिक कंस्ट्रेंट दे दो उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर आपको डिस्टिंक्ट ही फैच करना है, देखो सम केसेस यू आर फैचिंग डिस्टिंक्ट, दैट्स ओके, दिस इज वन टाइम क्वेरी और समथिंग, कि महीने में एक बार या 2 बार आप क्वेरी चला रहे हो, बट इफ यू आर यूजिंग दिस रेगुलरली, सो यू कैन यूज unique constraint on that, fix the duplicate option sum from joins और improper grouping। या तो आप ग्रुप करके डेटा को लेके आ सकते हो, जैसे अगर मैं ग्रुप करता हूँ यहाँ पे कस्टमर आईडी को, जैसे कि अगर मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, या फिर मैंने काउंट या कुछ कर दिया आईडीज का, या केवल कस्ट आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम ऑर्डर्स, और डिस्टिंक्ट की जगह मैंने यूज कर लिया ग्रुप बाय कस्ट आईडी, तो देखो डेटा मेरे पास सेम आएगा, ठीक है, राइट, ऑर्डर भी सेम आ रहा है, बट व्हाट इज जस्ट डू, वी हैव जस्ट रिमूव द डिस्टिंक्ट एंड वी यूज द ग्रुप बाय, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे स्टिंग में सी नेम लेके आ रहा हूँ, देन ऑर्डर आईडी लेके आ रहा हूँ, सेम जो मैंने एग्जांपल ऊपर बताया। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कर सकते हैं ऑर्डर्स को ऑन सी डॉट आई डी ऑन कस्टमर आई डी एंड स्टेटस इज एक्टिव, सो इट विल ऑप्टिमाइज, इट विल नॉट यूज दैट मच परफॉर्मेंस वेयर वी यूज दैट डिस्टिंक्ट। अगर हम डिस्टिंक्ट यूज करते हैं तो ये ऑप्टिमाइज कम है ऑफकोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा, पहले डेटा फैच करेगा देन सॉर्ट करेगा, और यहाँ पे हम केवल सॉर्टिंग मैनर में ही और केवल वही डेटा लेके आएंगे जो यूनिक है, राइट। Use group by, as I told you. Ensure indexing match the distinct column. If the distinct column are indexed, the DB can read sorted data directly without a full sort. Okay, full data fetch करने की जगह हम यहाँ पर directly with the help of index डेटा लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स सिंटेक्स आपको पता ही है, क्रिएट इंडेक्स आईडी यूजर नेम एंड ऑल दैट, ठीक है। यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑन जॉइंट, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट की जगह ना आप एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हो, एग्जिस्ट और इन ऑपरेटर, राइट। फास्टर विज एग्जिस्ट, ओके, सो सिलेक्ट सी आई डी, यू कैन सी क्वेरी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फैच किया है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्ट कीवर्ड आई एम सर्चिंग द डेटा, ओके। So you can also apply this sorting technique or grouping by and join technique on your distinct queries, okay। अवॉइड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्टिंक्ट, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो एक ही कॉलम करो, सारे डेटा सिलेक्ट मत करो, ओके, बिकॉज इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या रहेगा कि पहले डिस्टिंक्ट से सारी कस्टमर आईडी लेके आएगा, फिर उनके बिहाफ पे जो रोज हमें मिली है कस्टमर आईडी की वही रोज फैच करेगा, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ डिस्टिंक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज द डिस्टिंक्ट क्वेरीज। Okay, let's move to next slide where we have choosing appropriate data type. So this I can easily tell you, okay, what is appropriate data type, कि भाई देखो जहाँ पे int यूज़ हो रहा है, ऑफकोर्स मोबाइल नंबर में int यूज़ होगा, ठीक है, अगर आप +9 में ऐड नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे केवल इंटीजर टाइप यूज़ करो, आईडी में इंटीजर टाइप यूज़ करो, ईमेल में केवल वेयर कैर, और उसका साइज़ भी डिफाइन करो। डेटाबेस का साइज़ जितना कम होगा उसको कैशिंग करने में और उसको रीड करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्मॉलर टाइप्स, लेस स्टोरेज, फास्टर रीड्स राइट्स एंड बेटर कैशे यूजेस। Example of numeric IDs, tiny int for this range 1 byte up to 255, small int 2 byte size in a column up to 65k, int 4 byte लेता है ना, और up to 2 bytes, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग इंट, ये आपका 9 क्विंटिलियन इतना डेटा ले सकता है, ठीक है। डोंट डिफॉल्ट टू बिग इंट अनलेस नेसेसरी, बिग इंट सबसे ज़्यादा मेमोरी देता है, तो इसलिए बिग इंट को एनी हाउ ऐसे ही यूज़ नहीं करना है। मैच डेटा टाइप टू डेटा, न्यूमेरिक वैल्यूज यूज इंट डेसिमल फ्लोट अप्रोप्रिएटली, उसमें टेक्स्ट मत यूज़ करो, वेर कर मत यूज़ करो। टेक्स्ट वैल्यूज यूज कैर, फिक्स लेंथ और यूनिफॉर्म लेंथ, ठीक है। अगर टेक्स्ट आपका छोटा है, जैसे यूएस कोड हो गया, ठीक है, यूएस हो गया, या हम INR लिख रहे हैं करेंसी के लिए, तो यहाँ पे आप कैर यूज़ करके, वेर कैर यूज़ करने की जगह कैरेक्टर यूज़ करके और लेंथ डिवाइस कर सकते हो 2 या 3 या 4, बिकॉज ये यूनिवर्सल थिंग है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। यूज़ वेर कैर फॉर वेरिएबल लेंथ, अवॉइड टेक्स्ट अनलेस स्टोरिंग वेरी लार्ज टेक्स्ट, ठीक है। इसमें एक डेटा टाइप टेक्स्ट भी होता है, आई जस्ट शो यू, ओके। से इफ आई गो ऑर्डर टेबल,
तो आप देख सकते हो मैं अगर इस कॉलम पे जाऊँ और यहाँ पे टाइप देखूँ इसका, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरे पास टेक्स्ट भी है। तो ये सारे जैसे टेक्स्ट है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। तो इनके लिए जब तक आप कोई बायोग्राफी या कोई बायोडाटा सेव नहीं कर रहे हो तब तक आप लार्ज का यूज़ मत करो। डेट्स में केवल जब भी आप डेट यूज़ करो, वेरचर यूज़ मत करो क्योंकि वो फ़िल्टर करने में भी और टाइम लेता है, ठीक है? तो आप डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प जो भी मैंने डीडीएल ऑपरेशन बताया है, तो ये सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अगेन। बूलियन वैल्यूज़ के लिए ऑफ कोर्स हमेशा बूलियन यूज़ करना चाहिए या बिट यूज़ करना चाहिए 0 और 1 या कैरेक्टर 1, ठीक है? लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अवॉइड ओवरसाइजिंग वेरचर, जस्ट आई टोल्ड यू वेरचर को ज़्यादा लेंथ मत दो अगर नेसेसरी नहीं है तो। जैसे मोबाइल नंबर डैश अगर मान के चलो वेरचर यूज़ करना है आपको, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वेरचर आपने यूज़ किया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप उसका साइज डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है, डेटा टाइप ने डिफाइन कर दिया एंड यहाँ पे आप उसका साइज डिफाइन कर दो। ओके, बी केयरफुल विद डेसिमल और फ्लोट वैल्यू, डेसिमल एग्जैक्ट प्रिसीजन यूज मनी आईडीज। ओके, मतलब आप डेसिमल और फ्लोट जहाँ यूज़ करोगे वहीं अपोज मनी के लिए या कोई भी आप अमाउंट सेव कर रहे हो या कोई भी वैल्यू सेव कर रहे हो, वेट सेव कर रहे हो, राइट, वेट या फिर हाइट वगैरह जहाँ पे पॉइंट्स का यूज़ होता है, सो देयर ओनली यू कैन यूज़ डेसिमल एंड फ्लोट एंड डबल वैल्यू। यूज enum, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज enum फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक ये मिस हो गया है, बट enum क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हो, ठीक है, जस्ट आई टोल्ड यू इन क्वेरी फॉर्मेट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो सपोज दैट वी हैव ऑर्डर टेबल और इसका स्टेटस में वेर कैर आप देख सकते हो 15 मैंने साइज दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने स्टेटस दिया हुआ है, ओके, वेर कैर इसका 15 दिया हुआ, तो मुझे क्या करना है कि भाई मैं केवल अपने enum में केवल 3 ही स्टेटस डिफाइन कर सकूं कि वो ऑर्डर अभी पेंडिंग है। सपोज मैं एक बार एक क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, वेर इट इज़, यस, तो मैं यहाँ देखूँ यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑल्टर टेबल कर रहा हूँ अपनी ऑर्डर्स, ठीक है, एंड मैं ऐड कॉलम कर रहा हूँ ऑर्डर स्टेटस। वो चलो एक स्टेटस कॉलम अलग है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर स्टेटस ऐड किया, ठीक है। अब ऑर्डर स्टेटस कैन भी सबसे पहले पेंडिंग हो सकता है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ enum, विद द हेल्प ऑफ enum यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि केवल यही वैल्यूज इसमें एंटर होनी चाहिए, ठीक है, आप कोई दूसरी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेंडिंग हो सकता है, शिप्ड हो सकता है और डिलीवर्ड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेटस और भी डाल सकते हो आप, पेंडिंग, अप्रूव्ड, राइट, और वन इज लाइक या इतना काफ़ी है, ठीक है। तो पेंडिंग, अप्रूव्ड, शिप्ड और डिलीवर्ड। ओके, एक स्टेटस और डाल दो, नॉट डिलीवर्ड। ओके, सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट वन लिस्ट इन योर कॉलम ऑर्डर स्टेटस, ठीक है, जिसमें आप पेंडिंग, अप्रूव्ड ये स्टेटस डाल रहे हो। तो जब भी हम एक ऑर्डर टेबल ऐड करेंगे तो हमको केवल यही वैल्यू में से एक वैल्यू चूज करनी है, ठीक है। और नॉट नल और डिफॉल्ट मैंने इसका एक्टिव डाल दिया, एक्टिव की जगह मैं डिफॉल्ट इसमें डाल सकता हूँ पेंडिंग, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कॉलम ऐड किया तो आप एक बार ऑर्डर टेबल को देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक कॉलम आ गया और डिफॉल्ट वैल्यूज की सब में पेंडिंग आ गई। तो इफ आई चेंज दिस डेटा, राइट, तो व्हाट आई कैन डू, आई कांट डायरेक्टली फिल्टर दिस डेटा, right, you can see I can't add this but I can edit this but I can't edit this, right। so suppose अगर आपको कोई टेबल में अब डेटा अपडेट करना है तो आप जैसे मान के चलो मुझे ये ऑर्डर है 10419, ठीक है, तो मुझे करना अपडेट, क्या मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, एक्टिव डाल देता हूँ, जब एक्टिव हमारी लिस्ट में नहीं है, ठीक है, वेयर ऑर्डर ID इक्वल दिस। सो यू कैन सी डेटा ट्रंकेटेड फॉर कॉलम ऑर्डर स्टेटस, मतलब ये डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहीं पे अप्रूव्ड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी रोज अपडेट हो चुकी हैं। तो अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने ऑर्डर को 10419 को, फिल्टर ही करना पड़ेगा, ओके, तो नाउ यू कैन सी दिस इज अप्रूव्ड स्टेटस। तो ओनली यू कैन फिल्टर द डेटा विच इज डिफाइंड इन enum। तो मोर स्पेस एफिशिएंट देन वेरचर एंड कंस्ट्रेंट आर बिल्ट इन कंस्ट्रेंट होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि इसमें आप दूसरा कॉलम ऐड नहीं कर सकते, ओके, तो ये भी नई चीज आपको सीखने को मिली आज। तो हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट द enum, प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन। नाउ व्हाट वी हैव 6 ऑप्शन, मैच डेटा टाइप इन जॉइंट्स एंड कंपैरिजन। गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोग, एक्सपीरियंस लोग भी ये गलती करते हैं ज़्यादातर कि सपोज दैट ऑर्डर आईडी इज इंटीजर, तो सबसे पहले तो उसको इंट में सेव करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका टाइप देखूँ अपनी ऑर्डर आईडी का, यहाँ पे A to Z है, ये A to Z नहीं होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे कोई ए डेटा वगैरह नहीं डालता। जैसे सपोज दैट फ्लिपकार्ट, फ्लिप डाल दिया मैंने फ्लिपकार्ट और ये फिर ऑर्डर आईडी है, दिस इज ओके,
देयर यू कैन यूज द वेयर टाइप। बट आपकी ऑर्डर आईडी अगर इंटीजर है, जैसे कस्टमर आईडी इंटीजर है, सपोज दैट दिस इज 1 2 3, राइट, आई एम फैचिंग द कस्टमर, आई वैलिड द कस्टमर आईडी इज इंटीजर, ओके। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे इस तरीके से इसको फिल्टर नहीं करोगे। सपोज मैंने क्या करा, यहाँ पे कस्ट आईडी डाल दी, ठीक है, एंड कस्ट आईडी मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, तो आई विल नॉट ऐड सिंगल कोड बिकॉज आई नो दिस इज इंटीजर वैल्यू, तो आई विल ओनली पास इंटीजर वैल्यू। क्योंकि ये क्या करता है ना, टाइप कास्टिंग करता है। टाइप कास्टिंग कैसे कि अगर जैसे मैं इसको इंटीजर में ढूंढ रहा हूँ, तो ऑफकोर्स अगर मैं कस्टमर ऑर्डर आईडी को इंटीजर में ढूंढ रहा हूँ, तो व्हाट इट विल डू, इट विल टाइप कास्ट दैट वेयर कैर टू इंटीजर, देन इट विल सर्च द नंबर if I doing like this. But if I am doing with the characters, so it will search in a characters row, right? So that's why always use character if the value is character and use integer if the value is integer, okay? And make sure आप database को अपने अच्छे से डिजाइन कर रहे हो, और अगर आपका DB एडमिनिस्ट्रेटर डिजाइन करके भूल गया है तो आप उसको भी बता सकते हो कि भाई इसको चेंज कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसीडर स्टोरेज इंजन स्पेसिफिकेशन, MySQL InnoDB, this is a type of DB. Prefer smaller primary key for clustered index. This is database design things, you can read it, okay. User binary types of large files कि store binary data blob byte rather than encoding in base 64 text। देखो यहाँ पे हमारे पास blob भी है डेटा टाइप में, ठीक है। एक बार मैं चलता हूँ, मेरे को दिखाता हूँ इसमें। तो if I search for blob, okay, तो this is for saving the image, वीडियो, सॉरी नॉट वीडियो, सपोज दैट एक इमेज, तो इमेज भी बाइट्स का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप होता है, तो आप उसको ब्लॉब में सेव कर सकते हो। लार्ज फाइल्स आई एम सेइंग, कीप इंडेक्स की स्मॉल, इंडेक्स कीज जो होती हैं वो आप स्मॉल रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएट इंडेक्स कस्टमर नेम, एंड यहाँ पे आप की का साइज दे सकते हो 50 और समथिंग, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ो, 10th ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज लास्ट ऑप्शन। कोई भी दिक्कत दिख रही है आपको डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ो कि भाई सही करे सर, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियंस विद यूनियन ऑल, ओके। तो गाइस देखो यूनियन एंड यूनियन ऑल इज वेरी सिंपल, जो मैं लास्ट टाइम 2 वीडियोस में बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, उससे पहले यूनियन में भी बताया था कि यूनियन एंड यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो फर्स्ट, यूनियन फंक्शन कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम 2 और मोर क्वेरीज एंड रिमूव द डुप्लीकेट। परफॉर्मेंस क्या है इसकी, स्लो है ऑफकोर्स, क्योंकि वो पहले दोनों टेबल को मर्ज करता है, फिर डुप्लीकेट रिमूव करता है। रिक्वायर एन एक्स्ट्रा सॉर्टिंग एंड डी डुप्लीकेशन स्टेप, ठीक है। व्हेन टू यूज, व्हेन यू मस्ट इंश्योर द फाइनल रिजल्ट सेट हैज यूनिक रोज एंड डुप्लीकेट शुड बी रिमूव, ठीक है। तो जब ये होता है, ये वाला काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आई विल रिकमेंड ऑलवेज यूज यूनियन ऑल, ठीक है। तो यूनियन ऑल आप यूज करोगे तो क्या करता है, कंबाइन रिजल्ट विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट, ऑफ कोर्स इट फास्ट, नो एक्स्ट्रा सॉर्टिंग, नो कंपैरिजन, नथिंग, ठीक है। व्हेन यू डोंट केयर अबाउट द डुप्लीकेट, व्हेन द इनपुट डेटा सेट आर ऑलरेडी यूनिक, व्हेन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एंड डुप्लीकेशन इज अननेसेसरी, ठीक है। सो हियर यू कैन सी कि भाई परफॉर्मेंस जरूरी है तो आप यूनियन ऑल यूज करो, अगर परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है तो फिर यूनियन यूज करो, कम डेटा है तो आपका, राइट। सो दिस इज यूनियन ऑल। नेक्स्ट इज यूज स्टोर प्रोसीजर। तो गाइज इन स्टोर प्रोसीजर आई हैव टोल्ड यू, स्टोर प्रोसीजर ऑलरेडी कंपाइल द क्वेरी। अगर आप कोई भी क्वेरी रन कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपका पहले डीबी उस क्वेरी को पढ़ेगा, फिर कंपाइल करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना कौन सा कॉलम कहाँ पे है, कौन सी टेबल कहाँ पे है, ब्ला ब्ला एंड ऑल द टाइप। सो स्टोर प्रोसीजर में वो डेटा ऑलरेडी, वो क्वेरी ऑलरेडी रीड होती है, कंपाइल होती है, तो यू जस्ट नीड टू कॉल इट विद द डेटा, एप्रोप्रिएट डेटा। सपोज अगर डेटा कॉल नहीं करो, जैसे गेट सेल्स रिपोर्ट, इसमें क्या पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं, कोई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो विद द हेल्प यू कैन ईजिली get the data because it will not compile, just fetch the data very fast. So this is also a kind of important thing. You can use store procedure for data which you are repeatedly fetching, right? So you can read this definition by yourself because I've just explained what I have written in this, okay. So we checked union with union all. Next what we have, avoid not equal or comparison in where clauses. Why? I will tell you. Yeah, this is performance impact. Why avoid this? Because likely cause a full scan. Full scan I told you कि full scan जब हम पूरा डेटा सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि select all from orders where status not equal to completed। देखो, एक हम बात कर रहे हैं कि not equal to completed का मतलब क्या हुआ कि हम वो डेटा देख रहे हैं जो इनकम्प्लीट है, राइट, जो पेंडिंग है। तो क्यों ना हम ये करें कि इक्वल टू पेंडिंग, समझ लो। तो हम क्यों ना वो डेटा देखें विच इज इक्वल टू पेंडिंग, राइट। सो दैट हाउ यू कैन ऑल्सो ऑप्टिमाइज योर क्वेरी। तो बहुत लोग गलती करते हैं ऐसी, कहने को छोटी सी बात है लेकिन ऐसे गलती करते हैं लोग, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू और दिस,
ये भी दोनों सेम ही काम करते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो इनको यूज़ मत करो। अब देखो जैसे सारा मैं डेटा फैच करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कंप्लीटेड नहीं चाहिए, बाकी सारे रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता कि मुझे खाली शिफ्ट रिकॉर्ड चाहिए होते तो ये शिफ्ट ही है वहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्ट यूज़ कर लेता, तो हमें पास शिफ्ट रिकॉर्ड्स आ जाते सारे के सारे, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दिस पार्ट। And there is some more options. Use positive matching instead negative matching, which I told you, ठीक है। नेगेटिव मत ढूंढो, एक्टिव ढूंढो डायरेक्ट, ठीक है। यूज इन और नॉट इन फॉर स्पेसिफिक एक्सक्लूजन। देखो, नॉट इन स्टिल बी स्लो फॉर लार्ज डेटा सेट, बट इन सम टाइम इजियर टू इंडेक्स देन दिस। इन यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो इन भी टाइम तो लेता है ऑफकोर्स, ठीक है। बट क्योंकि इन क्यों टाइम लेता है, आई विल टेल यू इन क्यों टाइम लेता है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टेटस नॉट इक्वल टू कैंसल्ड अदर यू कैन फैच, क्योंकि देखो कैंसिल वाले आपको नहीं चाहिए लेकिन बाकी तो सही है ना। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट वाला एग्जांपल दिखाया था, यहाँ केवल 2 कंडीशन हो सकती हैं, क्या, एक्टिव और इनएक्टिव, बट यहाँ मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। तो आप इन ऑपरेटर यूज करके पेंडिंग और एक्टिव और प्रोसेसिंग इस तरीके से डेटा लेके आ सकते हो, रादर देन नॉट इक्वल टू कैंसिल, क्योंकि तब भी ये सारा डेटा ही सर्च करेगा, बट हेयर इट विल जस्ट सेलेक्ट फॉर पेंडिंग, एक्टिव एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज यूज रेंज कंडीशन फॉर नंबर एंड डेट्स। भाई नंबर और डेट को ऐसे मत फैच करो, ठीक है। उसके लिए आप रेंज यूज कर लो, कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, नॉट इक्वल टू 5 यूज किया है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि भाई 5 से लेस देन और 5 से ग्रेटर देन आए डेटा ओनली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, केवल उसी स्पेसिफिक रेंज में सेलेक्ट करेगा, इट विल नॉट सर्च फॉर ईच एंड एवरी रो, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट, यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ इन सब क्वेरी। देखो ये मैं बताऊंगा एग्जाम्पल क्यों। देखो इन क्वेरी क्या करती है ना, इन क्वेरी विल सेलेक्ट ऑल योर डेटा, सपोज दैट वी हैव ऑर्डर्स टेबल, तो ये सारा डेटा सर्च करेगी कि भाई इसमें शिफ्ट है क्या, या इसमें कंप्लीटेड है क्या। जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, कहाँ गई वो क्वेरी, हाँ, तो इसमें पेंडिंग है क्या, इसमें एक्टिव है क्या, इसमें प्रोसेसिंग है क्या। अब देखो इनसे हमारे पास सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जिस्ट से हम क्या करेंगे कि भाई जैसे यूजिंग इन क्या करता है, मेक एन स्कैन एंटायर सबसेट रिजल्ट, और एग्जिस्ट क्या करता है, जैसे ही उसको फर्स्ट मैच मिलता है, क्योंकि हमें इनमें तो क्या, देखो इनमें तो हम सारे डेटा लेके आ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उसको एक रिकॉर्ड मिलता है वो स्टॉप हो जाता है। एग्जिस्ट का ये रूल है। तो एग्जिस्ट और इन दोनों ट्राई करके देखो अपनी क्वेरी में, क्योंकि जब मैं एग्जिस्ट और इन पढ़ा रहा था मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये दोनों ट्राई करो एंड देखो दोनों की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेन और एक्सप्लेन एनालाइज, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज बैच लार्ज ऑपरेशन। बैच लार्ज ऑपरेशन स्टैंड फॉर, देखो डिलीट ना एक बार में मत करो। जैसे आपको डिलीट सारा डेटा करना है, वैसे तो बहुत कम होता है ये, बट अगर मुझे 1 लाख रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो मैं उसको बैच वाइज करूंगा, 10,000 पहले, 10,000 बाद में, 10,000 उसके बाद, लाइक विद द हेल्प ऑफ लिमिट एंड ऑफसेट, ठीक है। सेम फॉर अ बैच अपडेट, बिकॉज ये ऑपरेशन होते हैं। अगर आप बैंक में जाओगे ना, बैंक में आपको 1 लाख रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, सपोज कि भाई इन सब पे चार्ज लेना है, ऐसा होता है। भाई बैंक का सर्वर बहुत बड़ा होता है, बैंक के सर्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे मोटे डेटाबेस की बात नहीं करते हैं। ई कॉमर्स का डेटाबेस ही बहुत बड़ा होता है, राइट। एंड गाइस, आई जस्ट रिमेंबर विद दिस थिंग कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर दिस वीडियो। वी विल क्रिएट मैनी प्रोजेक्ट ऑन एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स इन स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट हु जस्ट वांट टू अप्लाई एज अ बैक एंड डेवलपर, ठीक है। तो हम इसके बाद वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, पावर बीआई का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद ट्राइदेव एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव बैच अपडेट। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, फास्टर रोज पर इंसर्ट। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप वैल्यूज या इस तरीके से क्वेरी लिखने की बजाय, जैसे मैंने क्या करा, एक क्वेरी ये लिखी थी, ठीक है। दिस इज हाउ यू इंसर्ट, राइट। सो rather than putting each and every time insert into and something, you can just use the values, and after then you can just comma separated boxes you can define. Suppose this is one row, this is second row, this is third row, that you can do for inserting multiple rows at the same time, ठीक है। What is next? So guys, let's see the optimize like searches. Okay, so ये हमारा next है ऑप्शन। So optimize like searches का मतलब क्या है भाई, कि जब हम like का यूज करते हैं ना, what it will do, it will filter all your records where suppose that there is a name, just suppose this is the example I am taking. Okay, तो अब क्या होगा, बिकॉज मैंने लाइक परसेंटेज मैंने जो भी है वाइल्ड कार्ड मैंने पहले भी लगा रखा है एंड नेक्स्ट में भी लगा रखा है। तो ये क्या करेगा भाई कि जॉन को, सपोज दैट यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड है जॉन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक लिख दिया जोनस, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से, एंड एक और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, सपोज कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है।
तो जॉनी, जॉन, ठीक है, एंड यहाँ पे जॉन, हैरी, ओके, एंड देन जॉन, या यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिख दिया, जय, हरी, जॉन, किशन ठीक है। तो अगर मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये क्या क्या रोज फैच करके लेके आएगा, जॉन लेके आएगा ऑफकोर्स, एंड ऑफकोर्स जहाँ जहाँ पे इसको जॉइन अगर यहाँ भी मिलेगा, जैसे ये भी जॉन है, ठीक है, ये तो जो है खाली, तो ये तो नहीं सर्च करेगा ये, बट हाँ ये जॉन है, ये भी जॉन है, ठीक है, तो ये भी जॉन है, ये भी जॉन है, राइट। सो इट विल सर्च फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स बिकॉज दिस इज द वाइल्ड कार्ड फॉर फर्स्ट ट्रिम एंड लास्ट ट्रिम, ओके। बट if you want to filter the exactly John name, so what you can do, you can add the percentage, you can add the wildcard in the end of the string, okay। so then ये क्या करेगा भाई, केवल वही लेके आएगा यूजर जिनका नाम जॉन से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको फैच नहीं करेगा, ऑफ कोर्स इसको फैच नहीं करेगा। तो ये इंडेक्स फ्रेंडली कैसे हुआ, एक बार इंडेक्स में मैं दिखाता हूँ। सपोज दैट ये जे का टेबल है, ठीक है, मैं इसको फुल कर लेता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज दैट ये जे का टेबल है, ठीक है, तो जे में ऑफकोर्स सी बात है, जे एच बी यहाँ पे सारे होंगे, यहाँ पे जे एच के बाद जे के वाले सारे नाम होंगे, इस तरीके से स्टोर होता है डेटा इंडेक्स के अंदर। देन हमारे पास जो भी डेटा जे से स्टार्ट हो रहा होगा ये उसी की में जाएगा। ये ऑफकोर्स सी बात है, ऐसी कीज में नहीं जाएगा जो ए बी सी डी से स्टार्ट हो रही है। ये समझ में आया आपको पॉइंट। सपोज दैट आपके ट्री में ए बी सी इस तरीके से डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, जे तक, टिल जे रिकॉर्ड तक, ठीक है। तो अगर मैं जॉन से सर्च करता हूँ वाइल्ड कार्ड से, तो ये सारी इंडेक्स में सर्च करेगा, सारी की सारी। दैट्स वाई इट्स नॉट इंडेक्स फ्रेंडली। बट और ये भी ऑफकोर्स अगर मैं इसके स्टार्टिंग में भी दे दूंगा तो भी, ठीक है, बट इफ आई पुट इन द एंड ऑफ दिस ट्री, तो सबसे पहले ये जे को देखेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये सबको स्किप करता हुआ जे वाले टेबल में आ जाएगा। देन ओ एच एन, तो जहाँ पे जे ओ नाम से डेटा स्टार्ट होगा फिर जे ओ में जाएगा, फिर जे ओ में जहाँ पे जे ओ एच से स्टार्ट होगा फिर वहाँ जाएगा, फिर जे ओ एच एन, ठीक है। प्रोसेसिंग थोड़ी मुश्किल है, बट हाँ दिस वाइल्ड कार्ड इज फ्रेंडली फॉर इंडेक्सेस, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल और है यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप कह रहे हो कि भाई ये ऐसे कौन करता है, तो देखो इंडेक्स अगर जैसे आप gmail.com ढूंढ रहे हो, ठीक है, ईमेल डोमेन, तो एक तो आप क्या कर सकते हो भाई, कॉलम ही डिफरेंट कर लो उसका ईमेल डोमेन का, अगर आपको इतनी ही रेगुलरली उसको सर्च करना पड़ रहा है। नहीं तो आप यहाँ पे जैसे देखो ये मैचिंग गलत है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि @gmail.com ही होगा एट द एंड, ठीक है, लेकिन gmail.com से स्टार्ट नहीं होगा, सो देन यू कांट पुट परसेंट इज द एंड इन द एंड, बिकॉज @gmail.com से कोई स्टार्ट होगा ही नहीं, राइट। सो you can separate a column with the email domain, right? Next is, so the next is CTE with derived column। देखो भाई ये मैंने क्यों सब क्वेरी यूज करते हैं, क्यों कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, वो कितना टाइम लेता है, आई मस्ट से यू नीड टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो यू कैन चेक द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एंड हाउ दिस एक्चुअली ऑप्टिमाइज द सब क्वेरीज टू कॉमन टेबल एंड हाउ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द क्वेरी, ओके। सो ये ऑप्शन मैं ऑफकोर्स इस वीडियो में से स्किप कर रहा हूँ, बट लिंक में मेंशन कर रहा हूँ और उस पार्ट को भी मेंशन कर दूंगा वेयर आई हैव एक्सप्लेन दिस पार्ट, ठीक है। यूज स्टोर प्रोसीजर भी डन, प्रोफाइल एंड मॉनिटर क्वेरी परफॉर्मेंस विद द एक्सप्लेन एनालाइज, ठीक है। Identify the slow queries, save cost in a cloud database, prevent system slowdowns, okay। These things handled by the DB administrator, but you can also check these things by your own if आपके पास database का access है तो, ठीक है, बिकॉज अगर हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके पास डेटाबेस का एक्सेस हो भी सकता है, राइट। सो नेक्स्ट वन इज क्लाउड स्पेसिफिक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। दिस वी विल डू इन नेक्स्ट वेयर वी क्रिएट द एसक्यूएल प्रोजेक्ट ऑन AWS। वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कैसे क्लाउड से चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बिकॉज आई कांट शो दिस इन डेटाबेस administrator, okay, and we can install our sample database in AWS and we will see how you can optimize the queries on cloud, right? So guys, this is the last video of our lessons, okay. Let's go back to our chapter what we have added, okay. So we have added query analyze techniques. This is the last part of this video, but in next videos we will learn about execution plan and other things, but for now we are ending this series and in next video we will start with the projects, okay। series तो end हो गई जहाँ पे हम इसको learn कर रहे थे, because many students are saying कि हमें set query generate करना है and all that, so we will ending this series here itself and next we will start our execution plan
and other advanced stuff, because advanced आपने काफ़ी सीख लिया. Now it's done from your side. अगर आप ये सब सीख चुके हैं ना, no one can say that कि आपको SQL में कुछ थोड़ा सा भी कोई टॉपिक आपने मिस किया है, राइट? सो नाउ यू नो ईच एंड एवरीथिंग. एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो व्हाट यू कैन डू, you can practice SQL on lead code and other platforms, right? But I will say you can also follow my Instagram account where I have upload many interview questions related to SQL. Okay, so here you can see this is SQL interview question I am adding on Instagram. And also this, suppose that this is one sheet, 70 SQL interview question. Okay, so you can also download this PDF and try it by yourself. Okay, so let's start with SQL questions. Also I will create one video, separate video on SQL questions of SQL interview questions specify to companies. Okay, and okay, let's do one thing. I have created a SQL roadmap for you. In next video we will create a conclusion video of this course and you will find, हम समराइज करेंगे सारा कोर्स को कि हमने क्या क्या सीखा और क्या अगर मिस हुआ है तो वो हम कैसे सीख सकते हैं. सपोज कुछ एडवांस, बहुत ज़्यादा एडवांस अगर कुछ मिस हुआ है तो हम कैसे उसको सीख सकते हैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज, सब्सक्राइब द चैनल, एंड नाउ यू कैन ईजिली गो टू वेबसाइट एंड यू कैन जनरेट योर certificate. Okay, so guys, if you completed this course, so post this certificate on your LinkedIn also. By that other people can also enroll in this course and they can also learn the SQL from scratch to advanced, or you can say zero to hero. Okay, so let's meet in another video. Please add your comments how much you like this series, and if anything missed by me also mention in the comment section. We'll complete that part also. Okay, and don't think about that we will not do project, we will do projects anyhow after this video. So bye bye guys, stay tuned with Raivdev and let's start data analytics course as soon as possible. If you want to check SQL optimization interview question which is covered in this series, so you can refer this post and you will find all the question asked in MNCs for optimizing the query.